सो वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिफरेंसेस करेंगे वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है, विच इज बेसिकली नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स में, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज योर सिमेट्री. सिमेट्री इज रेडियल, बायरेडियल और इट मे बी एब्सेंट इन इनवर्टिब्रेट्स. अब रेडियल सिमेट्री क्या है? जिसमें जो है अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को हम किसी भी प्लेन से कट करते हैं थ्रू सेंटर एक्सिस, ठीक है, तो हमें क्या मिलेंगे? इक्वल हाफ्स मिलेंगे, ठीक है, मैनी हाफ्स मिलेंगे, ठीक है, विच इज बेसिकली कॉल्ड योर रेडियल सिमेट्री. एंड सिमेट्री इज बायरेडियल. बाय मीन्स टू. अब हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी को टू हाफ्स में भी हम डिवाइड कर सकते हैं एंड रेडियली भी उसको डिवाइड कर सकते हैं, विच इज बेसिकली कॉल्ड योर बायरेडियल सिमेट्री. एंड सिमेट्री में भी एब्सेंट लाइक इन योर अमीबा. एंड बायरेडियल इज like found in your jellyfish, and radial symmetry is it may be seen in your starfish, ठीक है. And vertebrates में आपके they have bilateral symmetry in which the body can be divided into two equal halves. And next is your metamerism. Metamerism is like segmentation in the body, and it is true, pseudo means false, or it may be absent in invertebrates. True metamerism क्या है? In which the body divided like externally as well as internally through segmentation or through metameres, okay, which is actually metamerism, ठीक है. और it may be absent in invertebrates. And आपके vertebrates में they are true segmentation is present or true metamerism is present, like externally, that is we have had the external segmentation, we have had neck, ठीक है, thorax, abdomen, etc., ठीक है. And internally we have vertebrae in vertebral column, ठीक है. This is basically true metamerism is present in vertebrates, ठीक है. Next is your post-anal tail. Tail is basically absent in invertebrates and it is usually present, and human being में it is in reduced form. Next is your grade of organization. Grade of organization is protoplasmic in invertebrates, and it is also organ and organ system and tissue level also, ठीक है. And protoplasmic is basically in which the it contain like a single cell organism, ठीक है, single cell organism. The organism body is made up of only single cell type, ठीक है, which is basically your प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और ऑर्गन तो आपको पता ही, एंड ऑर्गन सिस्टम भी पता होगा, ठीक है. एंड वर्टिब्रेट्स में आपका क्या होगा? एडवांस कैरेक्टर विच इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. Next is your germ layer. Germ layer is 2, 3 or it may be absent. And आपके vertebrates में 3 germ layer which is basically triploblastic organism भी बोलते हैं उनको. तो 3 germ layers are present which is ecto, endo and meso. And 2 germ layer में कौन सी आएगी? ecto and endo, ठीक है. Next is your coelom. Coelom is basically मतलब extra fluid filled cavity आप कह सकते हो. extra fluid filled cavity between your alimentary canal and your body wall, ठीक है. इसके बीच में क्या है? एक खाली सी कैविटी प्रेजेंट होगी which is basically coelom. And आपके इनवर्टिब्रेट्स में दे आर एसिलोमेट. एसिलोमेट मीन्स जो सिलोम जो है और जो बॉडी कैविटी है इट इज कम्प्लीटली एब्सेंट, विच आर कॉल्ड एज एसिलोमेट. एंड स्यूडो मीन्स फॉल्स सिलोमेट प्रेजेंट होगी, और इट में भी ट्रूली सिलोमेट भी हो सकते हैं, ठीक है. इसके अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है. अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ये सारे एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है. अभी के लिए आप इतना समझ लो, दे आर एसिलोमेट, सिलोम इज एब्सेंट, और स्यूडो मीन्स फॉल्सली डेवलप होगा, और ये भी मैं बताऊंगी किसमें कौन कौन से होते हैं, ठीक है. एंड ट्रूली सिलोमेट. एंड आपके वर्टिब्रेट्स जो है आपको आपके ट्रू सिलोमेट होते हैं, ठीक है. Next is your limb deviation. Limb deviation is from same segment, and आपके vertebrates they are from several segments, ठीक है.
Next is your notochord. It is important. Notochord is like your backbone, and notochord, or it may be absent, completely absent होती है, which is it is like basic जो आपका vertebrate और invertebrate में difference है, मतलब नाम से जो difference है vertebrata, it is basically notochord. ठीक है, notochord is absent, that's why they are called invertebrates, and notochord is present, that's why they are called vertebrates. ठीक है, and because they have vertebral column, or it is present at some stage of life or replaced by your, मतलब notochord present होगा, it may be replaced by your backbone. ठीक है, next is your gut position. Gut position is dorsal टू द नर्व कॉर्ड आगे होगी, एंड इट इज गट जो होगी आपकी वो पीछे होगी, एंड आपके वर्टिब्रेट्स में दे आर वेंट्रल इन पोजीशन. नेक्स्ट इज योर pharyngeal gill slits. Gills are absent, ठीक है, completely absent in invertebrates, and it is present at some stage of life. Like in human beings, gills also present in embryonic stage. Okay, later on it is replaced by your pharynx. ठीक है, नेक्स्ट इज योर एनस. एनस इज ओपन ऑन द लास्ट सेगमेंट. अगर प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट एट द लास्ट सेगमेंट. ठीक है, एंड इट मे बी एब्सेंट इन इनवर्टिब्रेट्स, एंड वर्टिब्रेट्स में इट इज प्रेजेंट बिफोर द लास्ट सेगमेंट. ठीक है, next is your blood vascular system. It is like your circulatory system, and in invertebrates they having open, closed, or circulatory system is absent also. ठीक है, in invertebrates open क्या होगा? Open circulatory system is basically in which मतलब कोई vessel present नहीं है, blood is flowing openly throughout the body. Okay, and closed is that in which there is like a vessel system is present, which is your veins, arteries. Okay, that is also called your blood. blood कहाँ पर blood किसके थ्रू ट्रैवल करेगा? थ्रू veins, arteries and vessels, through vessels. ठीक है, so this is basically closed type of circulatory system, and it may be circulatory system may be absent in some invertebrates. ठीक है, and आपके vertebrates में तो आपका क्या होगा? closed type of circulatory system, which is advanced character and it is much developed. Next is your heart. Heart is dorsal, lateral or absent, and it is ventrally placed in vertebrates. ये important है, it is ventral in position, और invertebrates में कहाँ होता है? dorsal, और it may be absent. dorsal blood vessel, blood flow anteriorly, इसमें anteriorly it is, and आपके vertebrates में blood flow posteriorly. Next is your hepatic portal system. It is also advanced character. It is completely absent. मतलब एक vein system है ये. ठीक है, it is completely absent in invertebrates, and it is present in your vertebrates, and it is like basically it is अगर आपको नहीं पता होगा, इसके लिए मैं अलग से मतलब पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी, बिकॉज इसमें भी एक लाइक ये क्या है, एक सीरीज ऑफ वेन्स है विच कैरी ब्लड फ्रॉम योर कैपिलरीज ऑफ योर स्टमक, पैनक्रियाज, एंड उसको क्या है, लीवर तक पहुंचाने का काम करता है. दिस इज बेसिकली हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. ठीक है, और इसका मेन जो काम है, इट इज टू डिलीवर द लाइक योर डीऑक्सीनेटेड ब्लड. ठीक है, मतलब इसको कैरी करना है, इसको डिलीवर करना है. ठीक है, next is your hemoglobin. Hemoglobin is like your protein in your RBCs which carry your oxygen. ठीक है, अब hemoglobin कहाँ? अब ह्यूमन बीइंग में तो चलो ये वर्टिब्रेट्स में तो ये आपको पता है कि RBCs में होता है, बट आपके इनवर्टिब्रेट्स में दे आर इन प्लाज्मा, और hemoglobin is also absent in your invertebrates, and vertebrates में ये कहाँ होता है? रेड ब्लड सेल विच कैरी योर ऑक्सीजन. नेक्स्ट इज योर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज थ्रू बॉडी सरफेस विच इज basically called your cutaneous respiration, and respiration is also through gills or trachea, which is basically called bronchial respiration.
एंड आपके वर्टिब्रेट्स में इट इज थ्रू गिल्स और थ्रू लंग्स. नेक्स्ट इज योर नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इज सॉलिड एंड इट मे बी हॉलो. ओके, सॉरी, इट इज सॉलिड इन आपके वर्टिब्रेट्स में एंड इट इज हॉलो. हॉलो होता है, ठीक है, इट इज इन हॉलो इन आपके वर्टिब्रेट्स में, ठीक है. नेक्स्ट इज योर ब्रेन. ब्रेन इज अबव फेरिंग्स और इट मे बी एब्सेंट, ठीक है. ब्रेन कहाँ होगा? अबव फेरिंग्स और इट मे बी एब्सेंट इन इनवर्टिब्रेट्स एंड इट इज डॉर्सल, पीछे की ओर होता है, इन हेड, ठीक है. नेक्स्ट इज योर नर्व कॉर्ड. नर्व कॉर्ड इज डबल इन इनवर्टिब्रेट्स एंड इट इज सिंगल. नर्व कॉर्ड क्या होती है? पीछे हमारे बैकबोन में जो होती है नर्व कॉर्ड जो होती है वो क्या होती है? सिंगल एंड डॉर्सल, पीछे की ओर होती है. इसमें क्या होती है? वेंट्रल इन पोजिशन एंड इट इज विदाउट गैंग्लिया. एंड सेगमेंटेड नर्व रूट्स, इट इज डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट्स, मतलब जो है नॉट सेपरेट होती, इकट्ठी होती है. एंड डॉर्सल, इट इज डॉर्सल इन एंड वेंट्रल रूट्स सेपरेट होती है, ठीक है, आपके वर्टिब्रेट्स में. नेक्स्ट इज योर रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल. रिप्रोडक्शन इज प्रीडोमिनेंट, मतलब ज़्यादातर क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेफर करते हैं एंड इट इज प्रीडोमिनेंट कौन सी है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बेसिकली यार वर्टिब्रेट्स में. नेक्स्ट इज योर रीजनरेशन पावर. रीजनरेशन पावर इज बेसिकली ऐसी पावर विच कैन रीजनरेट द ऑर्गेनिज्म इवन इट इज कट और इट इज मतलब अगर हम ऑर्गेनिज्म की बॉडी को कट करेंगे तो इट हैज़ अ कैपेबिलिटी टू रीजनरेट इटसेल्फ, ठीक है. और इट इज़ यूजुअली कोल्ड. इसमें इनवर्टिब्रेट्स में इट इज़ यूजुअली फाउंड एंड इट इज़ पुअर, वेरी पुअर इन आपके वर्टिब्रेट्स में. नेक्स्ट इज योर बॉडी टेम्परेचर. दे आर इनवर्टिब्रेट्स आर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है. दे कैन नॉट रेगुलेट देयर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग एंड आपके वर्टिब्रेट्स दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एंड दे आर ऑल्सो वार्म ब्लडेड. ओके, लाइक योर रेप्टाइल्स, ठीक है. रेप्टाइल हो गए, आपके फिश हो गए, ठीक है, एम्फीबियन हो गए. दे कैन नॉट रेगुलेट, दे आर ऑल cold blooded animals and like your human being they are warm blooded which can regulate their temperature according to their surrounding, ठीक है. आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए